The student is السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کو آپ کے ٹیکسٹ بک انگلش کلاس 6 کا جو اس میں پورشن 3 ہے شارٹ سٹوریز، تو اسی میں سے میں آپ کو ایک سبق لیسن نمبر 5 پڑھانے جا رہا ہوں جس کا نام ہے دا اسٹوری آف دا ہلز. تو پڑھانے سے پہلے مجھے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ غور سے میری طرف توجہ فرمائیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہی لیسن میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں جس کا نام ہے دا اسٹوری آف دا ہلز. I heard so much about Basangra and its environs. یہ رائٹر یہاں کہتا ہے، یہ مصنف یہاں کہتا ہے I heard so much about Basangra and its environs. یعنی یہ رائٹر کہتا ہے I heard so much، میں نے بہت کچھ سن رکھا تھا بسنگرا کے متعلق، and its environs. environs کا مطلب ہے سراؤنڈنگس، environs کا مطلب ہے مضافات، environs کا معنی ہے گرد و نواح. یعنی یہ رائٹر کہتا ہے میں نے بسنگرا کے متعلق بہت کچھ سن رکھا تھا، بسنگرا اینڈ اٹس انوائرنس، اس کے سراؤنڈنگس کے متعلق، بسنگرا کے مضافات کے متعلق، بسنگرا کے گرد نواح کے متعلق، اینڈ دا ڈینیزنز، اور ڈینیزنز، بسنگرا کے ڈینیزنز کے متعلق. ڈینیزنز مینز سٹیزنز، ڈینیزنز مینز شہری، ڈینیزنز مینز باشندے. انہیں رائٹر یہاں کہتا ہے I heard so much about، میں نے بہت کچھ سن رکھا تھا، about بسنگرا کے متعلق میں نے بہت کچھ سن رکھا تھا، and its environs، اس کے گرد نواح کے متعلق، اس کے مضافات، بسنگرا کے مضافات کے متعلق، and the denizens، اور بسنگرا کے شہریوں کے متعلق، بسنگرا کے باشندوں کے متعلق میں نے بہت کچھ تعریفیں سنی تھی. تو اتنی تعریفیں سن کر یہ رائٹر کہتا ہے، مصنف کہتا ہے اینڈ آئی ڈیسائیڈڈ، تو میں نے فیصلہ لیا، ٹو گو، میں وہاں جاؤں. آئی ڈیسائیڈڈ، میں نے فیصلہ لیا، ٹو گو اینڈ اسپینڈ مائی سمر ویکیشن دیئر. یہ رائٹر کہتا ہے میں نے فیصلہ لیا، اتنی تعریفیں سن کر بسنگرا کے متعلق، بسنگرا کے گرد نواح کے متعلق، بسنگرا کے مضافات کے متعلق، بسنگرا کے ڈینیزنی شہریوں کے متعلق، باشندوں کے متعلق، جب میں نے اتنی تعریفیں سنی تو میں نے فیصلہ لیا، I decided to go and spend my summer vacation there. میں نے فیصلہ لیا کہ میں وہاں جاؤں اور اپنی گرمائی چھٹیاں وہاں گزاروں. When I reached بسنگرا، یہ رائٹر کہتا، مصنف کہتا جب میں بسنگرا پہنچ گیا، I felt as if I had been dropped in a bucket of cold water after having been picked out of a cauldron of the boiling oil. یعنی یہ رائٹر کہتا جب میں بسنگرا پہنچ گیا، I felt، مجھے ایسا لگا، مجھے ایسا لگا جب میں بسنگرا پہنچ گیا، مجھے ایسا لگا جیسا کہ میں کسی ابلتے ہوئے تیل کی بڑی دیگ، کولڈون، کالڈرون، کالڈرون. یہ مصنف کہتا ہے جب میں بسنگرا پہنچ گیا مجھے ایسا لگا جیسا کہ میں کسی ابلتے ہوئے تیل کی بڑی دیگ، کالڈرون کا مطلب ہے بگ پاٹ، ہاں، ابلتے ہوئے تیل کی بڑی دیگ سے نکل کر ٹھنڈے پانی کی بالٹین میں گر پڑا. یہ رائٹر کہتا ہے، یعنی یہ کسی گرم علاقے سے آیا ہوگا،
जब ये बसंत ग्रह पहुंच गया, बसंत ग्रह का माहौल इतना था, इसका एनवायरनमेंट जो था, उसकी मज़ाफ़ात जो था उस बसंत ग्रह का, मतलब ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो वही इसीलिए ये कहता है, ये राइटर मुसन्निफ कहता है, जब मैं बसंत ग्रह पहुंच गया तो मुझे ऐसा लगा जैसा कि मैं किसी उबलते हुए तेल की बड़ी देग से निकलकर ठंडे पानी के बाल्टीन में गिर पड़ा। All around there were green maize fields with farmers working in them, and the sweet sound of sahidis floated in now and then, carried by the blowing breeze. ये मुसन्निफ कहता है, जब मैं वहां पहुंच गया, जब मैं बसंत ग्रह पहुंच गया, एक तो उसको ऐसा लगा, आई फेल्ट, मुझे ऐसा लगा कि जैसा कि मैं किसी उबलते हुए तेल की बड़ी देग से निकलकर ठंडे पानी की बाल्टी में गिर पड़ा। और उसने क्या देखा? ऑल अराउंड, मैंने इस बसंत ग्रह के इर्द गिर्द मैंने देखे, ऑल अराउंड देयर वर ग्रीन मेज फील्ड्स। मैंने हर तरफ सब्ज, बसंत ग्रह के हर तरफ मैंने सब्ज लहलहाते मक्की के सब्ज लहलहाते खेत देखे हैं, सब्ज मक्की के लहलहाते खेत, जहां पर किसान लोग, जहां पर फार्मर्स काम अपने खेतों में काम कर रहे थे और लोकगीत आपस में लोकगीत गाते थे। सोहिदीज का मतलब है लोकगीत, यानी फोक सॉन्ग्स, लोकगीत गाते थे। तो ये राइटर कहता है, जब मैं बसंत ग्रह पहुंच गया तो मैंने हर तरफ मक्की के सरसब्ज लहलहाते खेत देखे, मक्की के सरसब्ज लहलहाते खेत देखे, जहां पर फार्मर्स इन अपने खेतों में काम कर रहे थे और लोकगीत आपस में लोकगीत गाते थे। और उसके मजीद क्या देखा? Deodar and bottle trees on the high hill ranges swayed in the breeze like young boys dancing merrily. और मैंने क्या देखा? एक तो मैंने मक्की के सरसब्ज लहलहाते खेत देखे, जहां पर किसान लोग अपना लोकगीत गाते थे, अपने खेतों में काम कर रहे थे। तो दूसरा चीज मैंने क्या देखा? देवदार एंड पाटल ट्रीज ऑन द हाई हिल रेंजेस, ऊंचे चोटियों पर, बसंत ग्रह के ऊंचे चोटियों पर मैंने देखे देवदार के पेड़, देवदार के दरख्त और पर्तल के दरख्त मैंने देखे ऊंचे चोटियों पर। हिल रेंज स्वेड इन द ब्रीज, जो इस ठंडी हवा से, ब्रीज मीन्स ठंडी हवा से इस तरह लहराते थे, इस तरह, स्वेड मीन्स लहराना, झूलना, इस तरह झूलते थे। इन्हें राइटर कहता था कि ऊंचे चोटियों पर, बसंत ग्रह के ऊंचे चोटियों पर मैंने देखे थे देवदार के पेड़ और पर्तल के पेड़ मैंने देखे, देवदार के पेड़ और पर्तल के पेड़ मैंने देखे, जो ठंडी हवा से इस तरह लहराते थे, इस तरह झूलते थे। एंड लाइक यंग बॉयज डांसिंग मेरली, जैसा कि नौजवान लड़के खुशी से नाच रहे थे। ये राइटर कहता है, एक तो मैंने मक्की के खेत देखे, मक्की के सरसब्ज लहलहाते खेत देखे, दूसरा देवदार और पर्तल के पेड़ देखे, ऊंचे चोटियों पर, ऊंचे पहाड़ों पर, बसंत ग्रह के ऊंचे पहाड़ों पर, ऊंचे चोटियों पर देवदार और पर्तल के पेड़ देखे, दरख्त देखे, जो इस तरह लहराते थे, ठंडी हवा से जो इस तरह लहराते थे, इस तरह झूलते थे। स्वेड मीन्स झूलना, इस तरह झूलते थे, इस तरह लहराते थे, जैसा कि नौजवान लड़के खुशी से नाच रहे थे। डांसिंग मेरली मीन्स खुशी से नाचना, जैसा कि नौजवान लड़के खुशी से नाच रहे थे। शाबाश। द नेक्स्ट डे न्यूज़ स्प्रेड ऑल अराउंड दैट a man from the city had come. दूसरे दिन ये खबर पूरी बसंत ग्रह में फैल गई। The next day the news spread all around a man from the city had come. दूसरे दिन ये खबर पूरी बसंत ग्रह में फैल गई कि शहर से कोई नया आदमी बसंत ग्रह आ रहा है। शहर से कोई नया आदमी बसंत ग्रह में है। तो ये दूसरे रोज ये खबर पूरी बसंत ग्रह में फैल गई। It is my nature that I cannot settle at one place. लेकिन मेरा ये नेचर है, मुझे तो नेचर से लव है। इट इज़ माई नेचर, ये मेरी खसलत है कि मैं एक ही जगह पर नहीं बैठता हूँ।
I came out of the forest rest house to look for a suitable spot where I could sit and watch spectacles of the mountain, and if I got into the mood to write something. तो मैं दूसरे रोज ये खबर पूरी बसंतगढ़ में फैल गई कि शहर से कोई नया आदमी आया है. इट इज माई नेचर, लेकिन मेरी ये खसलत है, मेरी ये नेचर है, मैं एक ही जगह पर नहीं बैठता हूँ. तो मैं इस फॉरेस्ट रेस्ट हाउस से, जहाँ पर मैंने रात गुजारी, इस फॉरेस्ट हाउस से मैं बाहर निकल आया. लुक्ड फॉर ए सूटेबल स्पॉट, तो एक जगह मैंने मुंतखब किया, एक जगह की तलाश में निकल गया जहाँ मैं वायर आई कुड सिट, जहाँ मैं बैठ सकूँ, एंड वॉच द स्पेक्टिकल्स ऑफ द माउंटेन, और इस बसंतगढ़ के पहाड़ की तरफ का मंजर देख लूँ. स्पेक्टिकल्स मीन्स spectacles. Spectacles means spectacles. SPECTACLES. L spectacle. Spectacles means मंजर. स्पेक्टिकल मीन्स मंजर. यानी ये दूसरे दिन ये पूरी खबर ये खबर पूरी बसंतगढ़ में फैल गई कि शहर से कोई नया आदमी बसंतगढ़ आया है. इट इज़ माई नेचर, लेकिन ये मेरी नेचर है, ये मेरी खसलत है कि मैं एक ही जगह पर नहीं बैठता हूँ. आई केम आउट ऑफ द फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, मैंने इस फॉरेस्ट हाउस रेस्ट हाउस से मैं बाहर निकल गया जहाँ मैंने रात गुजारी. एंड लुक्ड फॉर ए सूटेबल स्पॉट, तो मैंने एक जगह का मुंतखब किया, एक जगह की तलाश की. आई कुड सिट एंड वॉच द स्पेक्टिकल ऑफ द माउंटेन, जहां मैं इस बसंतगढ़ के पूरे पहाड़ का मंजर देखूं. एंड इफ आई गॉट इनटू द मूड टू राइट समथिंग, और उस मूड में था कि मैं कुछ लिखने जा रहा हूं. I found a spot under a deodar. तो आखिरकार मैंने एक जगह मुंतखब किया, मैंने एक जगह चुन लिया. देवदार के नीचे बाहर आया. मुसन्निफ रेस्ट हाउस से बाहर आया और वो देवदार के दरख्त के नीचे एक मौजूद जगह पर बैठ गया. और मैं एक जगह पर बैठ गया. मैंने देवदार के नीचे मैंने एक जगह मुंतखब किया. There was green grass, जहाँ पर ग्रीन ग्रास था. and no need to spread a jury, यानी उस कोई कम्बल वगैरह बिछाने की ज़रूरत नहीं थी. यानी उतना घास था उसके नीचे उस देवदार के नीचे इतना घास था. शाबाश. आई फाउंड ए स्पॉट, मैंने एक जगह मुंतखब किया. तो ये मुसन्निफ कहता है जब मैं रेस्ट हाउस से बाहर आया और मैंने देवदार के दरख्त के नीचे एक मौजूद जगह पर बैठ गया. मैंने एक देवदार के दरख्त के नीचे एक जगह मुंतखब किया. देयर वाज ग्रीन ग्रास, जहां पर सरसब्ज घास था. एंड फ्रॉम देयर वन कुड हैव ए लवली व्यू ऑफ द रिवर उज, और जहां पर मैंने उस दरख्त के नीचे उस जगह पर मैं वो बैठ गया जहां पर दरियाए उज नदी उज बहती थी और उसका पूरा नज़ारा खूबसूरत मंजर को देख सकता था. तो मैं उस पहाड़ के नीचे उस पेड़ के नीचे उस देवदार के नीचे मैं बैठ गया और पूरा मंजर मैंने नदी उज का मंजर मैंने देख लिया. पूरा नज़ारा जहाँ पर मुझे उस रिवर उज का पूरा नज़ारा देखने को मिलता था.